वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो आज ही अभी थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम हुआ है, एएमयू एमबीए 2020। तो एएमयू का ये मेन एमबीए का एग्ज़ाम है। आज ही 4 तारीख में अभी थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 के अंदर मैं क्वांट के जो 25 क्वेश्चन है प्लस जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन का मैं आपके साथ आंसर की डिस्कस करूंगा और क्वांट के डिटेल सॉल्यूशन। पार्ट 2 के अंदर रहेगा रीजनिंग डीआईडीएस के जो क्वेश्चन थे प्लस इंग्लिश यानी वीएआरसी के क्वेश्चन। तो ये 50 प्लस 50 पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये पार्ट 1, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2। और ये जो पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, उससे आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसमें जाके। तो शुरू करते हैं। पहले मैं जीके जीएस से शुरू करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी उसके आंसर मैं बता दूं, फिर हम क्वांट का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो 25 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 25 पॉइंट के क्वेश्चन थे। इसके बाद 26 से लेकर 50 तक जीके जीएस के क्वेश्चन है। तो पहले जीके जीएस जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे पॉइंट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 26, ब्लड प्लेटलेट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ऑप्शन ए 8 to 10 days। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमन मैगसेसे अवार्ड वाज, इट इज ऑप्शन नंबर डी, विनोदा भावे। Identify the Navratna companies in the following. It is HPCL Limited. Who among the following is associated with White Revolution? The Milk Revolution. It is related to Vergis Kurian. Nephron is microscopic structural and functional unit of kidney. Bomdila Pass is situated in. It is situated in Arunachal Pradesh. Which among the following cities is called City of Golden Gate? The City of Golden Gate is San Francisco. Option A. Bogeybill Bridge has been constructed over the river. It is constructed over Brahmaputra River. Which of the following is not an official language of UNO? So Japanese is not an official language. Russian है, Chinese है, Arabic है. But Japanese is not an official language. Which of the following reform was carried out by Akbar in the first 10 years of his rule? Abolition practice of enslaving prison, yes. Tax levied on this, jizya, yes. The answer is all of the above. The famous revolutionary song "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है" was composed by, it is composed by Prasad Bismil, Ram Prasad Bismil. Mahatma Gandhi first experimented with the philosophy of Satyagraha in Champaran. Which of the following types of rocks are softer? It is option B, sedimentary. The solar corona mainly consists of molten lava. According to 2021 सेंसस टोटल मदर टंग रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कई अलग अलग सोर्सेस पे अलग अलग दे रखा है, बट मोस्ट एक्यूरेट मेरे हिसाब से इसमें है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं जाऊंगा इसमें ऑप्शन नंबर ए पे। इन इंडिया इन द लास्ट 20 ईयर द ग्राउंड वाटर लेवल has declined over 4 meters in about 300 districts. Option A. In the context of international trade, dumping refers to selling a commodity cheaper in a foreign market and costly in the domestic market. Economic liberalization in India started in substantial changes in industrial licensing policy. Option A. If the cash reserve ratio is lowered by RBI, its impact upon credit creation will be to increase it. Which of the following scheme has been initiated by the government for facilitating self-employment? So scheme is Pradhan Mantri Mudra Scheme. Option C. The position of economy of India in the world in terms of nominal GDP is fifth position. 2023 ICC Men's Cricket World Cup is scheduled to be hosted by India. India में ही होना है। The Ganga was declared as National River of India in 2008. And last two questions GKGS. In which of the following type of economy the resources of production are completely under control of government? It is the command economy. And NABARD is a last हमारा finance. It is a financial institution.
तो ये जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है, आंसर की हमारी आ गई है। और अब हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वांट के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे ताकि मैं आपको बताते चलूँ कैसे सॉल्व हो रहा है, ताकि आपके आगे के एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1, टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी, तीन लोगों की एज है 80 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर एगो। तो 3 ईयर एगो तीनों में से 3 साल कम हो जाएगा, यानी 80 माइनस 9 71, ऑप्शन है। In how many ways would the pacers be arranged so that each word would begin with P and ends with R? तो हमारे पास अब चार चॉइसेस बची और चार हमारे पास लेटर है A, C, E एंड S। तो चारों अलग अलग है, तो नंबर ऑफ वेज इज 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ऑप्शन बी। फिर 7n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5, इसमें से माइनस कर देना है 3n और ये कैंसिल, माइनस 10n प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी। Two number are respectively 32% and 20% less than a third number। मान लेते हैं x, तो उससे 32% लेस मीन्स 68% ऑफ x है एक नंबर, और दूसरा नंबर है 20% लेस मीन्स 80% ऑफ x। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, फर्स्ट सेकंड का कितने परसेंट है। इट विल बिकम 68/80 इंटू 100%। तो एक जीरो से जीरो, 8 से ये जाएगा 8 8 64, 8.5 इंटू 10 इज 85%, ऑप्शन है। सम ऑफ टू नंबर इज 56 एंड एलसीएम इज 105, देन द नंबर्स आर। तो सीधे हम क्वेश्चन से कर सकते हैं। 749 का एलसीएम नहीं होगा, 24 32 का भी नहीं होगा, 35 21 का एलसीएम होगा 105 का, निकाल के देख लिया, और दोनों का सम 56 है, तो ऑप्शन सी। और ये देखिए टेलीस्कोपिक सीरीज, ये क्लास में सब कराई थी, टेस्ट सीरीज में भी दे रखी थी। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। तो इस तरीके से हम लिखते रहेंगे और लास्ट टर्म हो जाएगा 1/9 - 1/10। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 1 - 1/10 यानी कि 9/10। आंसर इज ऑप्शन सी। A, B, C can do a piece of work in 6, 12, 24 they all together। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों का एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरीके से बिल्कुल सही सॉल्व कर रखा है, ये करेक्ट एकदम। 3 3/7, वरना एलसीएम से हम कर सकते थे। एलसीएम ले लेते 6, 12, 24 का, इट विल बिकम 24 यूनिट्स का वर्क है। ए करता है उसे पर डे, वन डे में 24/6 यानी कि 4 यूनिट्स। बी करता है 24/12 2 यूनिट्स, और सी करता है 24/24 यानी कि 1 यूनिट। तो एक दिन में ये तीनों मिलकर 7 यूनिट, तो ये करेंगे 24/7। आंसर विल बी 3 3/7 डेज। A can finish a piece of working alone in 6 days, B while working alone can finish the same work in 12 days, both of them work together। तो देखिए इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है xy/x+y। तो 6 × 12/6+12, ये हो जाएगा 6 × 12/18, 1 3 और 4, यानी कितने डेज में करेंगे 4 डेज। 25th टर्म ऑफ एन एपी निकालना है हमें, whose 9th term is 6, A9 is -6, यानी कि A plus 8D is equal to -6। एंड कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है 5/4, तो 5/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और इधर जाके माइनस, यानी ए आ गया -16। अब हमें निकालना क्या था 25th टर्म, ए 25 हो जाएगा A plus 24D, डी की वैल्यू रख दो 5/4 और ए की वैल्यू रख दो -16 इसमें। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से 6 5 30 -16 इज 40, ऑप्शन डी यस। In how many ways can 7 MBA and 5 MCA students be seated such that no two of the MCA students sit together? तो याद है हमने क्लास में डिस्कस किया था, नो टू वाला क्या केस होता है, नो टू MCA स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MBA वालों को सेट करा देंगे, MBA वालों को MBA वालों को हम सेट कराएंगे। तो MBA वाले हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये
एक एक अगर हम एमबीए वाले को यहाँ सेट करते हैं, तो एमबीए वाला सेट कर रहा है, उसके बाद एमबीए 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से सेट हो गए। और ये अब देखो एमसीए वाले 7, ये जो एमबीए वाले सेट हो गए 7 फैक्टोरियल, 7 प्लेसेस पे 7 फैक्टोरियल में बैठ सकते हैं। अब एमसीए वालों के पास कितनी चॉइस है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 प्लेसेस पे 5 को बैठना है, तो इट विल बी 8p5। So our answer will be 7 factorial into 8 factorial upon 3 factorial. Option D. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सब क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अब सीधे सीधे देखिए सेट्स का क्वेश्चन, फार्मूला में पता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन बी की वैल्यू दे रखी 0.25, ए की वैल्यू है 0.16, बी की वैल्यू है 0.14, ये हमें निकालना है। तो इट विल कम आउट एज 0.05। ऑप्शन सी। Two dice are tossed. Find the probability of getting an even number on the first die or a total of 8। तो देखिए इवन नंबर आने की तो सीधे सीधे हो गई प्रोबेबिलिटी हाफ, क्योंकि आधे नंबर इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, प्लस टोटल ऑफ 8। 8 आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, देखिए 8 कैसे आ सकता है, सम ऑफ 8, सम ऑफ 8 होगा या तो पहली डाइस पे 2 और 6 हो, या फिर 6 एंड 2 हो, देन 3 एंड 5 हो, या फिर 5 एंड 3 हो, एंड देन 4 एंड 4। ये 5 केसेस बनते हैं किसके, 8 आने के। अब देखिए कह रहा है फर्स्ट डाई पर या तो इवन हो या फिर टोटल ऑफ 8 हो। तो हमें पता चला हाफ प्रोबेबिलिटी यानी कि 36 आउटकम में से 18 आउटकम ऐसे हैं जिसमें कि पहली डाई पर इवन नंबर होगा। अब उसमें देखिए ये केस पहले से काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, सिर्फ एक्स्ट्रा कितने केस है, ये 2 केसेस। तो टोटल फेवरेबल केसेस होगा 18 + 2 यानी 20, टोटल पॉसिबल केसेस है 36। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 20/36, 5 4 जा, सॉरी 4 5 जा, 4 9 जा, यानी 5/9। आंसर इज ए। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो देखिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और मीन निकालना है तो इसको n से डिवाइड कर दो, यानी इसे n से कर दो, n से n कैंसिल, n प्लस 1/2। ऑप्शन बी। टू सेट्स, ये देखिए इंटरेक्शन दे रखा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर इज ए। बाय सेलिंग 45 लेमन फॉर ₹20, अ पर्सन लॉसेस 20%। लॉस कर रहा है कितना, 20%, यानी डिक्रीज। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा इसके लिए 1/5 यानी 4/5। तो सीपी इंटू 4/5 इज इक्वल टू एसपी। एसपी हमें दे रखा 40, ये जाएगा 10, यानी सीपी इज ₹50। 24 लेमन्स का सीपी यानी कितना था, 50 था, और उसे 40 पे बेच रहा था, इसमें 20% लॉस हो रहा था। सॉरी 45 लेमन्स का। अब वो कह रहा है कितने पे बेचे ताकि उसे 20% का फायदा हो जाए। तो 20% के फायदे के लिए, गेन के लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा 6/5, 10 यानी ₹60 का बेचे वो, 45 लेमन बेचे 60 के, यानी ₹60 के 45 लेमन, तो 24 के कितने होंगे, तो ₹24 के लेमन हो जाएंगे 45/60 इंटू 24। 3 जा 4, 4 6, 6 3 जा 18। आंसर विल बी ऑप्शन बी 18। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है,
तो टाइम लग रहा है 36, हमें पता है टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन ट्रेन अपॉन लेंथ टू, और स्पीड होती है तो माइनस, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस। तो यहाँ देखिए सेकंड में है, बाकी सब किलोमीटर आवर में है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। दोनों की लेंथ इक्वल है तो 12, और स्पीड का डिफरेंस हो गया 10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से 6 कट गया, 1/10 इंटू 10 इक्वल टू 12/10। ये 10 से 10 कैंसिल, एल इज इक्वल टू 1/20 किलोमीटर। आंसर हमें दे रखे मीटर्स में, तो इस किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो इट कम आउट एज 50। आंसर इज ऑप्शन ए 50 मीटर। By what percentage the interest amount received after 6 years is more as compared to the amount after 5 years on ₹1000? तो इसका मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ रहा है रिसीव्ड आफ्टर 6 years is more as compared to the amount after 5 years on ₹1000. Interest amount received after 6 years. So interest amount received after 6 years, देखिए आफ्टर 6 ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं सिर्फ 6 ईयर की बात कर रहा हूँ, 6 ईयर पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये होता है R% ऑफ प्रीवियस ईयर की अमाउंट पे जो लगता है। तो अगर उस सेंस में ये क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा 1। लेकिन अगर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कह रहा है वो, तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट के लिए पहले हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन 6 ईयर है, तो ऑप्शन ए हो सकता है, बट इट इज अ डाउटफुल क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सीधे फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन है। अब कह रहा है एक सिलेंडर है, इस फॉर्म में मान लेते हैं हम, उस सिलेंडर को कट करके क्या कर दिया है, रेक्टेंगुलर शीट ऐसे बना दिया। तो इसका जो कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 424, इट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, और इसकी ब्रेथ भी हमें दे रखी 33। तो इससे हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ विल कम आउट एज, और जब इसे डिवाइड करेंगे 11 से ये चला जाएगा तो 3 जा 11, 3 जा 33, 92, 8 और 4, 3 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 128। तो लेंथ आ गई 128 और ब्रेथ है 33, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स 128 प्लस 33, यानी 161 इंटू 2 यानी 322। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद टू साइड्स ऑफ 10 एंड 12 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है, और उसके बीच में एंगल मान लेते हैं हम 30 डिग्री। इस तरीके से तो सीधे सीधे इसका फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 1/2, 4 से ये गए 3, 330। आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करता है, ये डिस्पर्जन को मेजर करता है। क्वेश्चन 22, ए की वैल्यू दे रखी 3, बी की -1, सी की 2, तो विच इज 2, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, 3 to 5 minus 4, यस। 3a प्लस 5b, 9a, 9 हो जाएगा 3a, और 5b हो जाएगा -5, तो 9 माइनस 5 इज 4, ये भी ट्रू है। 2c माइनस 5 है, 2c माइनस हो जाएगा 4, -5a विल बिकम -15, ये नॉट इक्वल टू 6, तो ये गलत है। तो 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन 23 डाउट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो क्या दे रखा है, बिन्नी इज हाफ एज ओल्ड एज सन्नी। तो बिन्नी की जो एज है वो सन्नी की हाफ है। चिंकी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सन्नी, ये है। तो हाउ मेनी टाइम इज चिंकी एज ओल्ड एज बिन्नी। तो देखिए यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, सन्नी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बिन्नी, और इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें एस की, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2,
तो चिंकी इज 4 टाइम्स बिन्नी, और यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज चिंकी एज ओल्ड एज बिन्नी, तो ही इज 4 टाइम्स। आंसर 1/6, 1/3, 1/4 की फॉर्म में दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसके रॉन्ग ऑप्शंस दे रखे हैं। फिर भी अगर सबसे क्लोज जाएंगे तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 हो सकता है, 1/4 हो गया, बट आंसर इसका होगा 4 टाइम्स। तो दिस इज अ डाउट क्वेश्चन, इसे चैलेंज किया जा सकता है, इट इज अ डाउटफुल क्वेश्चन। अमित एंड सुमित आर ट्विंस, यानी A is equal to S. Richa is younger than Sumit. Richa is younger than Sumit. Richa is younger than, sorry, Richa is younger than Sumit का मतलब है Sumit is older than, हम वो सब ग्रेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं। Richa is younger than Jyoti, यानी ज्योति इज ओल्डर देन रिचा बट एल्डर देन सौरभ, सौरभ से एल्डर है। सुमित इज यंगर देन ज्योति, यानी ज्योति सुमित से बड़ी है। हु इज एल्डेस्ट, तो ये हमारे पास देखिए सारी इंफॉर्मेशन है, इनको हम एक जगह अगर रखें तो क्या आएगा, क्योंकि ज्योति आर से भी बड़ी है और एस से भी, और एस आर से भी बड़ा, तो इन तीनों से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस। अब ए और एस बराबर है, तो हम इसको और कंबाइन करके लिख सकते हैं ए, सॉरी, और आर एस बी से बड़ा है सौरभ से, तो ये हमारे पास फाइनल सबकी रिलेशन आ गई। सबसे बड़ा कौन है इसमें, ज्योति। आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग डीआई के क्वेश्चन, और इंग्लिश बीआरसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो माई एज इज 2 years लेस देन ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर। हाउ ओल्ड इज माई ब्रदर, ब्रदर को मान लेते हैं एक्स, तो उसका ट्वाइस हो गया 2x, और उसमें से 2 कम कर दो तो उसकी अपनी एज आ गई। अब क्वेश्चन में दिया इफ आई एम 16, यानी 16 इज इक्वल टू 2x-2, तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्टूडेंट जाम एएमयू का जो आज एग्जाम हुआ है एमबीए फुल टाइम का, उसके ये क्वेश्चंस हैं। पॉइंट के हमने डिस्कस किए, डिटेल सॉल्यूशन, और जीके जीएस के मैंने आपको आंसर की दे दी। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, डेटा सफिशिएंसी प्लस इंग्लिश के जो क्वेश्चन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लास।